معزز ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا حالات حاضرہ کے آج کے شمارے میں. میں ہوں ہمایوں. آج جب ہم ارد گرد اپنے نظر دوڑائیں تو بات ہوتی ہے صفائی کی. اور کووڈ-19 نے کہا ہے کہ دن بھر ہاتھ دھوتے رہو، لیکن سوچیں، تھوڑی دیر ٹھہر کے سوچیں تو ہمیں تو کہا گیا کہ صفائی آدھا ایمان ہے. تو پھر بات کیا ہے؟ اگر انگلی اٹھتی ہے تو شاید اپنی جانب ہی اٹھتی ہے. صفائی کی جب بات ہوئی تو بات صفائی کی صرف اپنے تن بدن کی نہیں ہے، گرد و نواح کی ہے، اپنے گھر کی ہے. اور ہمارے گھر کی خواتین، ہمیں پتہ ہے کہ گھر میں کتنی محنت کرتی ہیں گھر کو صاف رکھنے میں. اور سب سے صاف کمرہ گھر کا کون سا ہوتا ہے؟ وہ کچن ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے. کیوں؟ کیونکہ صحت کی بات ہے، نشو و نما کی بات ہے. لیکن کچن میں جو پکتا ہے، وہ جو پکا رہی ہیں، جو بھی پکا رہا ہے، اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں تو کیا جو پک رہا ہے اس میں جو مسالے ہیں، اس میں دودھ استعمال ہو رہا ہے، دہی استعمال ہو رہا ہے، چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، وہ کس حد تک صاف ہیں، ان اڈلٹریٹڈ ہیں، اور جو آپ تک پہنچ رہا ہے، جو آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ کتنا صحیح ہے آپ کی صحت کے لیے. اس کے لیے ایک محکمہ ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس محکمے کے سربراہ ہیں ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحب یہاں موجود ہیں، ہلال احمد میر صاحب. فوڈ سیفٹی کے یہ انچارج ہیں ڈپارٹمنٹ آف ڈرگ اینڈ فوڈ کنٹرول میں. تو ان سے بات ہوگی اس حوالے سے کہ آپ کا کیا کام ہے، آپ کیا ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں، کیا روک لگا رہے ہیں، اور کیسے صاف چیزیں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. اور ادھر بیٹھے ہیں ان کی بائیں جانب عرفان احمد بٹ صاحب، اسپوکس پرسن ہیں بیکرز، کشمیر بیکرز اینڈ مینوفیکچررز ایسوسیشن کے. آپ دونوں کا خیر مقدم ہے آج کے پروگرام میں اور دوردرشن کے اسٹوڈیوز میں. شکریہ. تو ہلال صاحب، بات ہوئی شروع میں صفائی کی. کووڈ کی وجہ سے صفائی کی طرف زیادہ زور ہے. کووڈ کی وجہ سے کھانے کی چیزوں میں بھی کیسے استعمال کی جائیں، کیسے مینوفیکچر کی جائیں، کیسے بیچی جائیں، تبدیلی آئی ہے. اس سلسلے میں آپ کی کیا پیش رفت ہے؟ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اس کے بعد ہم آئیں گے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں باقی چیزوں میں. ہمایوں صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کروں، آپ نے ہمیں دعوت دی آنے کی، اور ایک امپورٹنٹ موضوع پہ ہمیں بات کرنے کا موقع ملے گا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں یہ بات کہوں گا کہ میں سربراہ نہیں ہوں. آپ اسسٹنٹ کمشنر؟ ہاں، میں اسسٹنٹ کمشنر ہوں، اور میرا جو جوریڈکشن ہے دیٹ از سری نگر، مگر ہیڈ کوارٹر پر بیٹھا ہوں، تو اس لیے باقی جو ڈویژن ہے اس پر بھی میری نظر رہتی ہے. جو آپ نے صفائی کی بات کی پہلے، ٹھیک ہے، صفائی ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے فوڈ سیفٹی کا. جب تک نہ ہم جو ہمارے فوڈ اسٹیبلشمنٹس ہے وہاں پر صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، تب تک جو ہمارا اینڈ پروڈکٹ ہوگا وہ صاف ستھرا نہیں ہو سکتا ہے. اور آج جو کووڈ-19 کا جو معاملہ چل رہا ہے، جو مہاماری، جو بیماری چلتی ہے، اس میں بھی ہمیں صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب یہ پہلے ہم اگر کووڈ کے معاملے کی بات کریں گے تو جو ہمارے فوڈ بزنس آپریٹرز ہیں، یہ جو اگر ہم فوڈ سیفٹی ایکٹ کی بات کریں گے، اس میں شیڈول 4 ہے، یا گڈ ہائیجینک جو پریکٹسز ہیں، یا گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹس ہے، یا HACCP جو ماڈرن کنسیپٹس آن فوڈ سیفٹی ہیں، وہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے ہی بتائے ہیں کہ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیز کنسیپٹس، دیز میجرز یو ہیو ٹو ٹیک کیئر. اس کے ساتھ ساتھ آج کے ڈیٹ کی میں اگر بات کروں گا، جو کووڈ-19 کا معاملہ چل رہا ہے، تو اس سلسلے میں ان لوگوں کو کچھ ایڈیشنل میجرز لینے ہیں. ایڈیشنل میجرز یہ لینے ہیں کہ جب یہ جو ان کی پریمائسز ہوتی ہیں، ایک تو صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہی رکھنا ہے، وہاں باہر ان کو وہ کووڈ جو اسکریننگ ایک پروٹوکال ہے وہ ان پلیس رکھنا ہے. اس میں جو نان ٹچبل جو تھرمامیٹر ہے وہ رکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سینیٹائزر رکھنا ہے باہر، یا اندر جو مینوفیکچرنگ پریمائسز ہیں، کتنے ہاتھ لگ رہے ہیں اس پروڈکٹ کو، وہ بھی تو دیکھنا ہے ہمیں. ہاں، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، جو مینوفیکچرنگ کا معاملہ ہے، جب تک نا مینوفیکچرنگ میں جو ایک تو صفائی ستھرائی اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ آج کووڈ-19 کا جو معاملہ چل رہا ہے، تو اس لیے ان لوگوں کو زیادہ ہی احتیاط لینی ہے. جی آپ کے پاس پھر آؤں گا میں کہ آپ اس میں کیا کر رہے ہیں، کیا تدابیر کر رہے ہیں. عرفان بٹ صاحب ہیں، اسپوکس پرسن ہیں یہاں بیکرز اینڈ مینوفیکچررز ایسوسیشن کے. عرفان صاحب، جو ہلال صاحب نے کہا، اس میں آپ کتنے میجرز لے رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں اس سچویشن میں؟ دیکھیے جی، پہلے تو اٹ آل اسٹارٹڈ ود دا لاک ڈاؤن. پہلے لاک ڈاؤن میں سب کچھ بند تھا. جی. اپنے پریمیسز کو کھولنے سے پہلے، مینوفیکچرنگ فیسلٹیز کو کھولنے سے پہلے، آؤٹ لیٹس کو کھولنے سے پہلے، وی ہیڈ اے کمپریہنسو ٹریننگ پروگرام. ٹریننگ پرووائڈ کی گئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. ڈی سی صاحب خود آئے تھے، ڈی سی سری نگر جو ہیں وہ خود آئے تھے. یہ پروگرام ہوا تھا ایک ہول ڈے پروگرام کہ جو SOPs ہے، جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرس ہیں کووڈ میں، وہ ہمیں کیا فالو کرنا ہے.
टैगोर हॉल में ये प्रोग्राम हुआ था, तो हमारी एसोसिएशन के सारे मेंबर उसमें प्रेजेंट थे। तो फिर यूनानिमसली जब हमने ये समझा कि देखिए, इसमें सबसे पहले बात जो मैं आपसे बताऊंगा जो ज़रूरी समझनी है वो ये है, ताजिर होने के साथ साथ हम इंसान भी हैं। सही है। जितना हदशा इस बीमारी का किसी और इंसान पे, उतना ही हमें भी है। बिल्कुल है। आपको हमारी भी फैमिलीज़ हैं, हमें खुद अपनी फैमिलीज़ में वापस जाना है। तो जो प्रोसीजर्स हमें समझाए गए थे, जो मतलब स्टैंडर्ड सेट ऑफ जो एसओपीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें जो समझाया गया वो हमने सारे फॉलो किए हैं। इनफैक्ट अगर आज भी आप कहीं पे भी जाएंगे, आपने अभी बात छेड़ी थी जब हिलाल साहब सैनिटाइजर्स की बात कर रहे थे, आपने पूछा कि कितने लोग इस प्रोडक्ट को छूते होंगे, तो इसमें मैं आपकी बात में थोड़ा एक एडिशन चाहूँगा। उसमें सिर्फ एक ही आदमी उसे छूता है, क्योंकि हर एक आउटलेट जो हमारे साथ एसोसिएटेड है उन्हें सबको समझाया गया है कि एक आदमी आप सिर्फ इसलिए रखो जो पहले इंफ्रारेड थर्मामीटर से जो आपका इनकमिंग ग्राहक है पहले तो उसका टेम्परेचर लेगा। इफ़ देयर इज़ अ वेरिएशन इन टेम्परेचर और आपको लगता है कि टेम्परेचर हायर है, कि आदमी को बुखार है, तो प्लीज़ वी विल रिक्वेस्ट देम विद फोल्डेड हैंड्स कि आप प्लीज़ प्रीमिसेस में एंटर मत करिए। वो हमारा पहला है। उसके बाद वही उनको दूसरा बंदा उसको छुएगा नहीं। जो बंदा उसके लिए तैनात किया गया है वही एक ही आदमी उनके हैंड सैनिटाइज करेगा उस प्रोडक्ट से। तो उसके बाद में वो अंदर आएंगे। उसके बाद में जब परचेज का सिलसिला शुरू होता है तो हर एक आउटलेट में डिस्प्ले काउंटर्स होते हैं, और आप भी देखते होंगे शहर में तो सभी घूमते हैं। आज हर एक आउटलेट में आपको डिस्प्ले काउंटर्स के आगे अलग टेबल मिलेंगे। वो टेबल इसलिए हैं ताकि जो हमें समझाया गया था कि 2 मीटर्स की डिस्टेंस आप कोशिश करिए मेंटेन करने के लिए, मतलब सैनिटाइजेशन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखिएगा। और दूसरा ये भी है, मान लीजिए अभी तो खैर रश है नहीं, वी ऑल नो कि अभी लोग दूसरी चीज़ों में लगे हुए हैं। हम जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं ये सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है, कोई प्राइमरी मतलब उतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, उतना फ्लो है भी नहीं। अगर बाई चांस किसी आउटलेट पे फ्लो है, मतलब हमने उनसे ये कहा है, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने उसी दिन जब हमारी ये मीटिंग हो रही थी तो सबको इन्फॉर्म किया कि इंश्योर कि दुकान में 3 लोग से ज़्यादा, और वो भी एक सेफ डिस्टेंस। इरफान साहब, जो आपने कही ये बातें सही हैं कि ये चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन मैंने खुद बेकरी वाले देखे जहाँ 10 आदमी इकट्ठे घुस जाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो एक एक करते घुसने देते हैं, एक एक को दाखिल होने देते हैं, ज़्यादा को दाखिल नहीं होने देते हैं। लेकिन ऐसे भी हैं 10-20 घुस गए और वो भी कुछ नहीं कहते हैं कि आप आ गए तो चलिए आइए, सब है, हमारे साथ कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते। इसमें मैं थोड़ा ये बात बताऊंगा कि जब ये कोविड-19 की ये जो बीमारी है जब ये फैलने लगी इन आवर कंट्री, तो हमें गाइडलाइंस मिली फ्रॉम WHO एज वेल एज फ्रॉम द फूड अथॉरिटी विच इज़ द एपेक्स अथॉरिटी, फूड रेगुलेटर जो है, दोनों से हमें गाइडलाइंस मिली। और वो जो गाइडलाइंस हैं हमने वो फॉरवर्ड की, तो ऑलमोस्ट एवरी मैन्युफैक्चरर, उसमें जितने भी मैन्युफैक्चरर हमारे कश्मीर डिवीजन में, देखिए आपने गाइडलाइन की वो सही बात है, नहीं, मैं फॉलो अप भी करना है। मैं उसी पे आऊँगा ना। उन गाइडलाइंस में जैसे आपने ये बात छेड़ी, उसमें ये दिया गया, उनमें ये बात दी गई है कि ये जो इनके जो प्रेमाइसेस हैं, एक तो है मैन्युफैक्चरिंग प्रेमाइसेस, बात मैन्युफैक्चरिंग की, देखिए मैंने हाथ लगने की बात की थी कि मैन्युफैक्चर करते सामान को, चीजों को कितने हाथ लगते हैं। दूसरा हिमायत साहब होता है कि आउटलेट वेयर दे सेल देयर प्रोडक्ट्स। नंबर जो देखिए दोनों चीज़ों में इनको एहतियात करना है। नंबर 1 इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रेमाइसेस, नंबर 2 इज दी वेयर द आउटलेट वेयर दे सेल दीज प्रोडक्ट्स। हाँ, दोनों जगहों पर इनको जो एहतियात है वो बरतने हैं। उसमें ये इनको जो वहाँ पर जो अब सेल आउटलेट है, वहाँ की जो आपने अभी बात की, मुझे लगता है कि दैट पर्टेन्स टू दैट सेल आउटलेट। वहाँ पे क्या है कि इनको वो मार्क्स वहाँ पे लगाने हैं, दीज आर एज पर द गाइडलाइंस, मार्क्स लगाने हैं बाय वर्चू ऑफ स्टिकर्स या लगाने, कि जहाँ पर फॉर एग्जांपल वहाँ एक बंदा अंदर पहले जाएगा, उसके बाद एक डिस्टेंस मेंटेन करके दूसरा मार्क लगाना है, सो दैट कि ये जो कोविड-19, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि नंबर 1 कि जो वहाँ पर एक फिजिकल डिस्टेंसिंग वो मेंटेन होनी चाहिए, नंबर 2 जो इनका प्रोडक्ट है उसमें किसी किस्म का टच नहीं लगना चाहिए। सही है। देखिए ना, मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटिया। भी लगाया, कुछ किया, लेकिन लोग
लोग दाखिल हो कहीं गए, पे एब्रिएशन, कहीं लेकिन पे ना कहीं पे लोग दाखिल हो गए तो उस वक्त ऐसी बात है कि उस दुकान वाले को कहना है निकलो बाहर, हाँ। मैं नहीं बेचूंगा, वो नहीं कहता है। हाँ तो प्रॉब्लम ये है इरफान साहब, ऐसा बहुत जगह हुआ है कि हम ही गलती करते हैं, आप ना भी करें, तो हम घुस जाते हैं दुकान में, दाखिल हो जाते हैं, फिर आपको तो ये मेजर लेना है कि मैंने कुछ देखे हैं हलाल चौक वगैरह में, वो एक के बाद दूसरे को नहीं दाखिल होने देते हैं, लेकिन कुछ है वो कहते हैं जितने आ जाएं आ जाएं। तो ये आपको भी चेक करना है। देखिए हुमायूं साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्फाक रखता हूँ, बट एक चीज़ हमें समझनी है, इट्स अ कलेक्टिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा, हम हाथ जोड़ के विद फोल्डेड हैंड्स अपने कस्टमर से रिक्वेस्ट करेंगे कि रश ना हो, आप एक एक करके आइए। बट ये जो मतलब दूसरी चीज़ है, वी कैन नॉट डू अ पुलिसिंग जॉब। राइट, जितनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो प्रेमिसेस को ओवर क्राउड करते हैं। हमने अपनी तरफ से, जैसा मैंने आपने कहा, वी हैव टेकन अ ट्रेनिंग, अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो SOPs हमें समझाए गए, वी आर स्ट्रिक्टली एडहियरिंग बाय देम, जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में जो बताया गया है। और मैंने आपसे पहले ही कहा था, शुरू में ये कहा था कि हम भी इंसान हैं, मतलब जितना इन्फेक्शन का खतरा, आपका इंटरेक्शन ज़्यादा है लोगों से, आपको ज़्यादा खतरा है जी, आपको अपनी सेफ्टी का भी सोचना है, हकीकत ये है। अब दूसरी जाने बातें, जैसे ये बेकर्स हैं, हमको पता है कहाँ बेकर है, कहाँ मैन्युफैक्चरर है जो ऑर्गेनाइज्ड है, इनकी तो हम बात कर लेते हैं। जो ऑर्गेनाइज्ड डाल के किराने बारबेक्यू बेच रहा है, कहीं सड़क पे पकौड़े बेच रहा है, छोटा टी स्टॉल है, वो फ्री है, उसका कोई चेक ही नहीं है। हाँ, पैकेट का दूध है उसको आप पकड़ लेंगे, या कोई चीज़ बना रहा है, इसको नहीं, इसको छोड़ देंगे। देखिए माहिर साहब, जैसे इरफान साहब ने कहा कि एक कलेक्टिव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका महकमा है ना? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मगर लोगों को ये भी खुद सोचना है, बिकॉज आवर डिपार्टमेंट कैन नॉट रीच टू ईच एंड एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ आवर सिटी और आवर स्टेट। उसमें यह है कि हर एक बंदे को ये सोचना है कि ये जो कोविड-19 की महामारी है, ये किसी को भी लग सकती है। एंड दूसरी ये बात कि नाउ वी हैव टू लिव विद दिस काइंड ऑफ वायरस, हम इससे भाग भी नहीं सकते हैं, मगर जो एहतियाती तदाबीर हैं वो हर एक को लेने हैं। मेहराज साहब, ये बात हुई कि कोविड-19 इसके बगैर ही छोड़ दीजिए, अगर नहीं भी होता, आपके डिपार्टमेंट का मैं लफ्ज़ जो यूज़ करूँगा शायद सही ना लगे, डर नहीं है लोगों को कि आप करेंगे वो छूट भी जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ चलेगी नहीं आपकी उसके बाद। तो उसके बाद इसलिए उसको पता है, आज ये हुआ, थोड़ा अखबार में आ गया, अगर बड़ा है छोटा है तो कुछ नीचे से दफ़ा हो गया, तो इसका क्या करेंगे? देखिए हमारे साहब, मैं एक बात यहाँ पर बताऊँगा। मसला ये है, एक तो हो गया डर, दूसरा ये हो गया कि चेंज क्या हमारे डिपार्टमेंट की वजह से आई है कि नहीं आई है। मैं आपको जस्ट एक मिसाल दे दूँगा। एक सर्वे हो गई जस्ट में, शायद ये फरवरी का महीना था, जनवरी सर, नहीं फरवरी में, जब ऑडिट वाले आ गए, FSI वालों ने ऑडिट की टीम यहाँ भेजी, उन्होंने ऑडिट किया ऑफ द कन्फेक्शनरी एंड बेकरी, जितने भी यहाँ हमारे दुकान हैं, उन्होंने उनको ऑडिट किया। J&K का ऑडिट हो गया। हमारे श्रीनगर में एक बंदा नंबर 1 पे आ गया। और आज के डेट में अगर आप जाएंगे इन लोगों के पास, मैक्सिमम एस्टेब्लिशमेंट दे हैव पुट इन प्लेस, जैसे मैंने पहले कहा, शेड्यूल 4, गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, गुड मैन्युफैक्चरिंग, दे हैव पुट इन प्लेस, उन्होंने रखा है। अब और इनका एड्रेस है आपके पास, नहीं आप पहुंच जाएंगे। देखिए उसका क्या होगा? देखिए जो आप स्ट्रीट वेंडर्स की बात कर रहे हैं, हम उनका रोजगार नहीं छीन सकते। नहीं, वो बात नहीं है। मसला ये है, रोजगार क्यों छीनना है? आपको एक स्टैंडर्ड बनाना है। मैं वही कह रहा हूँ ना, स्टैंडर्ड उनको भी मेंटेन करना है। वहाँ पर वो गर्दा वर्दा वो नहीं चढ़ना चाहिए, या उनके जो इंग्रेडिएंट्स रंग डालते हैं उसमें, वो नहीं, रंग का जो मसला है वो अलग एक बात है। देखिए रंग हम पूरी कर रहे हैं ना अडल्ट्रेशन या कंटेमिनेशन की बात, तो उसमें तो ये तो आएगा ही। वो अब ये भी है कि आज के ज़माने में कोई खांसा या छींक आ गई। देखिए अगर पहले हम रंग की बात करें, जो रंग है ना, रंगों में 3 किस्म है। एक हो गया वो कलर विच इज टोटली जो हम देवारों में करते हैं। जी नहीं, वो कौन डालेगा खाने? नहीं, वो मिक्स ही नहीं ना होगा। मैं वही कह रहा हूँ ना। नंबर 2 इज दोज फूड कलर्स विच आर अलाउड इन परमिसिबल। हाँ, दोज आर कॉल्ड सिंथेटिक फूड कलर्स। नंबर 3 इज नेचुरल कलर्स। अगर कोई नेचुरल कलर का इस्तेमाल करता है तो हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। अगर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कोई नेचुरल कलर का इस्तेमाल करेगा, आपको एतराज नहीं है। अब आर्टिफिशियल चेकिंग बहुत रैंडम है, कभी कभी हो गई चेकिंग, वो सारे खबरों में आ गया। फर्स्ट मे को आपने 900 कुछ 95
चेकिंग्स की, उसमें से सिर्फ 62 सैंपल उठाए, वो 6% भी नहीं हुआ सैंपल का। तो आप एक आपकी तरफ इरफान साहब फिर आते हैं, जैसे हमने इनकी बात की, आप नज़र में हैं जी आपको, ये हमने कहा आपको बेचने का तरीका है, जहाँ आप मैन्युफैक्चर चीज़ करते हैं जी हाँ, तो वहाँ क्या हाल सूरत हाल है? क्योंकि ऐसा भी है कि बहुत से बड़े बेकर्स जो हैं वो किसी छोटे बेकर से सामान बना के ख़रीद के खुद बेचते हैं, जी। उस छोटे बेकर को कौन देखेगा कि वो मेंटेन कर रहा है ये कि नहीं? देखिए सर, मैं इसमें पहले जो आपने ये बात कही, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि कोई बड़ा बेकर छोटे बेकर से, वो तो पता है हम सबको। नहीं, आई मीन देखिए, एक है कही सुनी बात, दूसरी है ऑथेंटिक कोई बात, लॉजिकल बात आपसे देखिए ईद आने बोलूंगा दीजिए, वही होना है। सर। मैं लॉजिकल बात आपसे कहूँगा, एक बंदे के पास प्रोडक्शन फैसिलिटी है, जी, अब आप उससे बड़ा कहते हैं क्योंकि बड़ा सिर्फ प्रोडक्शन सही, फैसिलिटी से सही होता है, प्रोडक्शन फैसिलिटी से और उसके कितने वॉल्यूम्स है। अब जिसके पास एग्जिस्टिंग वॉल्यूम है, उसने एक फैसिलिटी लगाई उस एग्जिस्टिंग वॉल्यूम को लेने के लिए, आई डोंट थिंक कि वो उस बंदे के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाएगा जिसका वॉल्यूम बहुत कम होगा, पहली बात। दूसरी, अभी हिलाल साहब ने जिक्र किया ये जो ऑडिट हुआ, ये FSSAI की तरफ से फ्रॉम सेंट्रल अथॉरिटी, जी जी जी, देयर वाज एन इंडिपेंडेंट ऑडिट, फूड इंडिपेंडेंट मतलब इनके Food महकमे का safety भी and उसमें रोल standards। नहीं था। बिल्कुल। इनफैक्ट आई एम श्योर कि मे बी इनसे पूछ के भी नहीं हुआ। जी जी, देयर वाज अ रैंडम सर्वे ऑफ मेनी आउटलेट्स हियर, और बहसीत कश्मीरी उसके बाद में इस एसोसिएशन का स्पोक्स पर्सन होने के नाते आई शेयर द डेटा विद यू अगर आपको चाहिए होगा। हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है, खुशी की बात है। मेजॉरिटी more than 92% people have scored A, गुड, which is the best possible score Right. जो उनको मिल सकता था। राइट, तो ये पॉसिबल हुआ है। मैं आपने अभी जब आपने से ये बात भी कही, इस डिपार्टमेंट का डर नहीं होगा सर, दिस लॉ इज सो स्ट्रिंजेंट, आदमी को जब When applied. when applied, Right. and it's not that this law has not been applied, it has been applied at many instances, many instances. इरफान साहब, ब्रेड की अगर बात करें, आप लोग जी ब्रेड सर। मैन्युफैक्चर करते हैं, जी। और ऐसा भी हुआ कि 30 तारीख की तारीख लिखी है, 30 और 29 को ब्रेड बिक रही है किसी स्टोर में। जी। तो ऐसे केसेस भी हैं हमारे पास ब्रेड के। और जो पैकेज चीज़ें हैं वो इनसे भी बात करूंगा। तो ये ऐसा कैसे होता है? सर ये शायद दूध में देखा होगा आपने, नहीं, ब्रेड में भी देखा है। कर्ड ब्रेड में भी देखा नहीं उसमें हिमायत साहब नहीं, उसमें लॉ क्लियर है, दैट इज बेसिकली यूज बाय डेट, वो यूज बाय डेट होता है। नहीं, ये तो तो ये मैन्युफैक्चरिंग manufacturing- लिखते हैं। नहीं Manufacturing date bread पे नहीं मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, हो सर। सकता है, उस पर नहीं होता, उस पर यूज बाय, यानी यूज बाय आप 4 दिन में इस्तेमाल कर, यूज बाय डेट होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग कितनी डेट होनी चाहिए? वो दैट डिपेंड्स अपॉन दी। यानी अगर मैं आज प्रोडक्ट बनाऊंगा, मैं 8 दिन आगे लिख सकता हूँ ब्रेड में? देखिए उसमें ये है 2 ही आप- दिन होगा ना ब्रेड में। उसमें नहीं उसमें सर। उसमें नहीं उसमें जो कानून के हिसाब से उसमें उन्होंने मैक्सिमम रखे हैं 7 डेज, बट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस इन विच दैट ब्रेड इज केप्ट, कंडीशंस। जी जी, अगर किसी ने आज के डेट में, और जो गर्मी चल रही है, बाहर ये ब्रेड रखी, ये 4 घंटे भी ठीक नहीं रह सकती। इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर कंडीशंस। अगर टेम्परेचर कंडीशंस 4 डिग्री के आसपास उसने रखी तो ये 7 दिन तक रह सकती है, 7 डिग्री डेज, बट रखना विद इन द मुश्किल है। टेम्परेचर कंडीशंस। और एक और चीज़, जो पैकेज फूड है हमारे यहाँ, पैकेज फूड में अब हर चीज़ें हैं, खाने का सामान भी है, केक भी है, बाकी चीज़ें भी हैं। तो हाँ, सही बात है कि पैकेज फूड के बारे में आपका क्या है, क्या आपके कानून है, क्या स्ट्रिंजेंट लॉज है? देखिए और देखिए बाहर से भी आ रहा है, बाहर से फ्रोजन फूड आ रहा है। आपने देखिए मैं इमाम साहब, मैं आपको एक बात कहूँगा। आपने पहले ये कहा कि डर नहीं है, वो अलग बात, डर वो अलग एक मसला है। मसला है कंप्लाइंस कितनी है। अगर हमें कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर कंप्लाई कर रहा है टू द लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ द FSS एक्ट, हमें क्या जरूरत है कि उसको हम कोर्ट भेज दें? नहीं, मैं कब कहता हूँ उसको भेजें? नहीं, मैं वही अच्छा, जब हमें लगता है, नहीं पहले मैं उस बात पे जाऊंगा। अगर हमें लगता है कि कहीं पे जो FBO है, he is not following the rules and regulations, we are very strict against them, and we have closed so many business establishments on the ground that they were not following the rules and regulations. Number 1. Number 2, अब जो आपने पैकेजिंग की बात की, मेजॉरिटी ऑफ द जो फूड कमोडिटीज दे कम इन द पैकेट फॉर्म आज के डेट में, और आने भी चाहिए, बिकॉज जो कोविड-19 अगर हम इसको मिलाएंगे उसके साथ, तो आज के डेट में हम इनको भी कह रहे हैं, इरफान साहब को भी, मैं इस प्रोग्राम की वसातत से जितने भी अगर हमें कोई बेकर सुनता है कि उनको अगर जो अब बड़ा दिन आने वाला है, ईद उल अज़हा आने वो वाली पहले है, भी बेचते थे। हाँ, एक चीज़ करना है उनको कि पैक्ड कंडीशन में, इवन पेपर की अगर पैकिंग हो, पैक्ड कंडीशन में भेजना है।
اور اگر ہم وہ مجبوراً کوئی چیز اگر وہ کسی کو بیچنا ہے لفافے میں بائی ورچو آف اے ٹانگ یا بائی ورچو آف اے سپون وہاں سے اٹھانا ہے, اس لفافے میں ہاتھ نہیں لگانا. جی ہلال صاحب ہاتھ نہیں لگانا. ایک بات اور بھی ہے کہ ایک آپ کی ہے فوڈ سیفٹی, آپ فوڈ سیفٹی ایکٹ لاگو کرتے, ادھر سے میونسپلٹی ہے, آپ لوگوں کی کلیش بھی ہوتی ہے بہت چیزوں پہ, اور بہت چیزوں میں ایسا بھی ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے. نہیں وہ मम्मी की छुटकी डैडी की गुड़िया पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश. इस घर की बेटिया. پہلے کی بات ہے, اب کوئی کلیش نہیں ہے. بفور دیٹ بیکاز اٹ واز دی میونسپل ہیلتھ آفیسر ہو واز لوکنگ آفٹر دیز کائنڈ آف تھنگز, جو یہ یہاں سری نگر کی میں اگر بات کروں گا, مگر دیٹ از اے ناؤ گون تھنگ دیٹ از ناٹ پریزنٹلی, کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. ناؤ اٹ از لکڈ آفٹر بائی دی فوڈ اینڈ ڈرگز ڈپارٹمنٹ ان ہول JNK انکلوڈنگ دی سری نگر سٹی. اب کوئی اس میں ڈسپیوٹ کی بات عرفان صاحب آپ کے پاس کون آتا ہے, میونسپلٹی کتنی آتی ہے اور یہ کتنے آتے ہیں, آپ کو کس کس کو جواب دینے ہیں؟ نہیں, میونسپلٹی کا ہم, یہ ہلال صاحب نے صحیح بات کہی, آج سے 3-4 سال پہلے ہم خود کنفیوز تھے. اچھا, مطلب who has authority over us, مطلب اچھا. now we have a clear definition. اب last to last year there was a clear definition given کہ کیا ہے. جو جہاں تک ہماری مینوفیکچرنگ پریکٹسز ہے, ویئر فوڈ از انوالوڈ اور ویئر آر مینوفیکچرنگ فیسلٹی اور آؤٹ لیٹ از انوالوڈ, جہاں تک فوڈ کا تعلق ہے وی فال انڈر دا ڈپارٹمنٹ آف فوڈ اینڈ ڈرگ کنٹرول. اور جو ایکسٹرنل پریمیسز کی جو ہائیجین ہے وچ از آؤٹ سائڈ آف پریمیسز, آؤٹ سائڈ آف مینوفیکچرنگ فیسلٹی, اس کے لیے میونسپلٹی ہے جو فار کلیننگ اینڈ ہائیجین. اچھا جی, یعنی یہ آپ جو کوالٹی آف فوڈ آئٹمز رول ڈیفائن ہو گئے. ایک اور بیکر کا جو معاملہ ہے جہاں ہم صبح سب ہوتے ہیں وہ ہے نان وائی, وہاں تو 20-30 آدمی اکٹھے جمع ہو جاتے ہیں اس کے سر پہ, اور بہت کم ہیں جو ان کو روکتے ہیں. تو اس معاملے میں کچھ آپ کو کرنا ہوگا. دیکھیے ہم نے اس کچھ, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی کہ ہم نے گائیڈ لائنز جو یہ ایشو کی, اس میں ہم نے جتنے بھی جو بیکر چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے یا جو لوکل, جیسے آپ نے نانوائیوں کی بات کی, ان کو بھی ان کے ایسوسیشن ہے, ہم نے ان کو بھی بلایا, ہم نے ان کو بتایا کہ کیسے آپ لوگوں کو کچھ نے کی ہے پریکاشن, بار لگایا, ڈنڈا لگایا, لیکن پریکاشن کچھ لوگ میکسیمم پیپل آر ٹیکنگ پریکاشنز. مگر معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر جو صفائی ستھرائی کی جو آپ نے بات کی, کہیں کہیں پہ کمپرومائز ہو رہی ہے. میں اس چیز کو مانتا ہوں, کہیں کہیں پہ کمپرومائز ہو رہی ہے. ہم نے ان لوگوں کے خلاف بھی بہت سارے چالان جو کمپیٹنٹ کورٹ ہے وہاں پر دائر کیے, اور ایک کنٹینیوس ایک پروسیس ہے جو فوڈ سیفٹی کا معاملہ ہے. اٹس اے ویری کمپریہنسو سبجیکٹ, ایک کنٹینیوس ایک پروسیس ہے. اس میں ایک پروسیس یہ بھی ہے, وہ آج ہم بات کریں گے نہیں کہ آپ سرٹیفکیشن آپ دیتے ہیں, میونسپلٹی دیتا ہے, کیسے دیتے ہیں, آج وہ معاملہ نہیں, آج ہم صرف سیفٹی کی بات کریں. ایک اور چیز ہے کہ میں آپ سے ہی چاہوں گا اس کا جواب. جیسے ہم فروٹ خریدتے ہیں, وہ ایسٹلین اس میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے, کیلشیم کاربائڈ ڈالا ہوا ہوتا ہے, وہ رائپننگ ہو جاتی ہے اس کی, ہم کھا لیتے ہیں, وہ جو ایسٹلین ہے وہ بدل کے آپ کے جسم میں جاتی ہے, آپ وٹامن اے اور سی کے لیے فروٹ کھا رہے ہیں لیکن آپ کو اور کچھ ہو رہا ہے. ان فروٹ والوں پہ آپ کا کتنا کنٹرول ہے؟ دیکھیے ہمایوں صاحب, یہ بدقسمتی کی بات ہے نا کہ لوگوں میں زیادہ مسکنسیپشنز ہیں, اور آپ کو بھی مطلب میں ایک یہ دیز آر آل مسکنسیپشن ہے. آپ کے جو کالے داغ ہوتے ہیں نا ان پہ کھانے پہ, وہ کیلے پہ, آم پہ, وہ کیلشیم کاربائڈ ہے. نہیں, میں وثوق کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں آج کے ڈیٹ میں کیلشیم کاربائڈ استعمال نہیں ہوتا. وہ تھوڑا آپ کو بتائے گا, ہم تو جاتے ہیں نا, ہمارے سے تھوڑی چھپائے گا. دیکھیے آج کے ڈیٹ میں وہی آٹومیٹک چیمبرز, ان میں سے سائنٹیفکلی جو کیلے ہیں وہ رائپن ہوتے ہیں, بیکاز ان کو یہ آرٹیفیشلی رائپن کرنی ہی کرنی ہے, بیکاز اگر وہاں سے ہی پورا رائپن ہو گیا ہوگا. کیلا کچا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے. ہاں اس کو ہونا ہے, ٹرانسپورٹ نہیں ہوتا, کچا نہیں ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, وہ ختم ہو جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا. جب یہ یہاں لاتے ہیں نا, they have put in place the automatic chambers, تو ان میں سے سائنٹیفکلی یہ رائپن ہوتا ہے. جو آپ کیلشیم کاربائڈ کی, یہ گئی گزری بات ہے, آج کے ڈیٹ میں نہیں ہوتا ہے. اور یہ بھی دیکھو آپ نے کتنے فروٹ والوں کے ٹیسٹ کیے؟ ٹیسٹ کیا, ہم جاتے رہتے ہیں, ٹیسٹ بھی کرتے رہتے ہیں. آپ تربوز کاٹ کے دیکھیے,
आधा लाल है, देखिए, आधा सफेद देखिए, है, देखिए। आधे में मीठे का मजा है, आधे में देखिए कोई देखिए और मजा है। देखिए उसको इंजेक्शन हुआ देखिए है। बिल्कुल कोई इंजेक्शन नहीं है, लोगों को डराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं हो रहा है। जो भी तरबूजे सुर्ख होते हैं वो नेचुरल होते हैं, उनमें किसी किस्म का इंजेक्शन नहीं होता है। और मैं आपको वो जो आपने कहा कि आधा वो पका हुआ था, आधा वो सुर्ख था, आधा नहीं पका हुआ था, वो ऐसे ही था उसमें। वो दैट इज बाय वर्चू ऑफ, उसमें वो नहीं, वो नेचुरली हुआ होगा उसमें। वो नहीं है कि आधे हिस्से में इंजेक्शन किया तो आधे हिस्सा, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि हमको भी 20-30 साल 50 साल फ्रूट खाते हो ही गए होंगे ना, हम भी टेस्ट फ्रूट का जानते ही होंगे ना, वो डिफरेंट टेस्ट कैसे समझेंगे हम जानते होंगे। ये इरफान साहब रेस्टोरेंट भी खुल गए जी, और बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, आप उनको भी सप्लाई करते होंगे रेस्टोरेंट्स को, और आपकी बेकरीज के साथ भी बहुत से रेस्टोरेंट जुड़े हैं, तो वहाँ क्या कर रहे हैं आप? आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है क्योंकि आप स्पोक्स पर्सन डिफरेंट चीज़ के हैं, लेकिन आप देख तो रहे होंगे। नहीं देखिए, हमारे जो खुद के एसोसिएशन में मेंबर्स हैं, बहुत सारे मतलब फास्ट फूड में भी डील करते हैं, जी। रेडी टू ईट जो होता है। बिल्कुल। करंटली वो सब ने बंद रखा हुआ है, वी आर ओनली गिविंग होम डिलीवरीज। अच्छा। क्योंकि हमने इत्तेफाक राय से अंडर म्यूचुअल कंसेंसस, इवन दो अभी रिसेंटली गाइडलाइन भी दी गई कि खुल सकता है, बट स्टिल आई मीन मेंबर्स ऑफ आवर एसोसिएशन हु आर नॉट फुल फ्लेज्ड रेस्टोरेंट, जो फुल फ्लेज्ड रेस्टोरेंट्स नहीं है, सिर्फ खाने पीने का कुछ रखा हुआ है, हम सिर्फ टेक अवे, ओनली टेक अवे। अभी तक तो हम आज के दिन तक हम उस पे ही है। फ्यूचर में जो साहब रेस्टोरेंट में ये बैठने का सिलसिला शुरू हो गया क्या? नहीं, इजाजत नहीं है अभी नहीं, कोई चोरी कर रहा है। सिर्फ टेक अवे या टेक आउट हम जिसको कहते हैं उसकी इजाज़त है, और होम डिलीवरी की इजाज़त, होम डिलीवरी की इजाज़त है। अब एक जाते जाते आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि देखिए आम आदमी किसी दुकानदार को देख के उसे कंप्लेंट ना करे, हो सकता है, लेकिन क्या आपकी कोई ऑनलाइन हेल्पलाइन है जिसमें वो कंप्लेंट करेगा या जिसमें वो लिखेगा? बिल्कुल कर सकता है। 249 5191। नहीं, फ़ोन नहीं, आप ऑनलाइन गए हैं क्या, वो मेल करेगा आपको? मेल भी कर सकता है आपका? हाँ, क्योंकि कोई हेल्पलाइन है ऐसी? हेल्पलाइन नहीं है, हमारे 2 टेलीफोन लाइन्स हैं, नंबर 1, नंबर 2 हमारे मेलिंग एड्रेस हैं, और कंप्लेंट्स लोग करते रहते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि देखिए आज ज़माना वो है, एक पहले डिस्टेंसिंग है, बाहर जाना नहीं, अगर आप गए भी उसके बाद आदमी करेगा ताकि आप कम से कम इन्वेस्टिगेट करें। मेलिंग एड्रेस में दे सकता हूँ, आई कैन गिव द मेलिंग एड्रेस एज वेल एज फोन नंबर। 2490095 एक नंबर है, 2495191 दूसरा नंबर है, MIRHILAL55@gmail.com मेरा मेलिंग एड्रेस है। Anybody has any complaint with regard to the quality of the food items, they can contact us and instantly we will address their complaint. हिलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, असिस्टेंट कमिश्नर हैं फूड सेफ्टी के डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग एंड फूड कंट्रोल में, और इरफान अहमद भट्ट साहब स्पोक्स पर्सन कश्मीर बेकर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दूरदर्शन के स्टूडियोज़ में हालात हाज़रा में आपने आज शमूलियत की, और ये वसी टॉपिक है, इसके और भी पहलू हैं, कभी और बात होगी, लेकिन आज इजाज़त चाहेंगे आपसे और उम्मीद करेंगे कि ये जो महकमा है वो काम करेगा वैसे ही जैसे हिलाल साहब ने कहा है, और हम भी इनका साथ देंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए डिस्टेंस मेंटेन करेंगे जैसे इरफान साहब ने कहा है, और इन रूल्स पे रेगुलेशंस पे हम फॉलो करेंगे, हम इसे तोड़ेंगे नहीं, इनको मजबूर नहीं करेंगे कि ये गलत काम करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज का हालात हाज़रा देखने के लिए, इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफिज़।